Hi everyone. I hope you are all doing great in mathematics. In this video, I am going to solve another beautiful problem on number theory. The problem is asking to find all positive integers m such that a relation is given, and they have told that we need to find all m such that the given relation holds. So ये रहा problems. तो पहले मैं चाहूँगा कि तुम खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करना ना बहुत ज़रूरी है। और जब तुम खुद से ट्राई करोगे तभी तुम अच्छे से सीख पाओगे। सो ट्राई योरसेल्फ एट फर्स्ट एंड देन सी द सॉल्यूशन। ओके, तो मेरे को क्या दिया गया है, मेरे को ऑल एम फाइंड करने को कहा गया है ताकि ये जो गिवन रिलेशन है ये होल्ड कर जाए। सो फर्स्ट वी विल चेक द गिवन कंडीशन बाय टेकिंग सम स्मॉल वैल्यूज ऑफ। सो मैं क्या करता हूँ, पहले m इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एज इट इज क्लियरली सीन दैट m इज इक्वल टू 1 पे जो कि LHS है वो हमारा 1 है, एंड जो कि RHS है वो भी हमारा 1 है। सो m इज इक्वल टू 1 क्लियरली वर्क्स। ओके, लेट्स चेक फॉर m इक्वल्स टू 2। नाउ ये क्या रिलेशन देगा? When we put m is equals to 2 in LHS, we will find that this is 1 factorial times 3 factorial. So this is nothing but 6. Okay. And what about RHS? It will be 2 times 2 plus 1 by 2 factorial, which is 3 factorial, which is again 6. So that means for n is equals to 2, this also works. Now we'll check for m is equals to 3. So for m is equals to 3, I will get from LHS is 1 factorial times 3 factorial times 5 factorial, okay, which is nothing but 6 factorial. All right, so from LHS I will get 6 factorial, and what we will get from RHS, it is 3 times 4 divided by 2, which is 3 times 2 factorial, which is again 6 factorial. So that means for m is equals to 3, it will also work. Now what about m is equals to 4? So if we'll take m is equals to 4, I will get 1 factorial times 3 factorial times 5 factorial times 7 factorial. Okay, so 1 factorial times 3 factorial times 5 factorial times 7 factorial from LHS. And what we will get from RHS? RHS is 4 times 4 plus 1, which is 5 over 2, which is 5 times 2, which is 10 factorial. Now when you check this, you will get that this LHS is far greater than RHS. That means m equals to 4 does not work. Now if you check for m equals to 5, you will again get that this given conditions is not satisfied, because in LHS you will get 1 factorial times 3 factorial times 5 factorial times 7 factorial times 9 factorial, and in RHS you will get 15 factorial. Now मैं तुमको बता देता हूँ कि ये क्यों होल्ड नहीं करेगा इस रिलेशन, क्योंकि ये जो 15 फैक्टोरियल है इस चीज़ को 11 डिवाइड कर रहा है, लेकिन इस लेफ्ट वाले साइड को 11 नहीं डिवाइड कर रहा है। तो 11 RHS को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 11 LHS को नहीं डिवाइड कर रहा है। So that means you cannot tell that the given relation is satisfied. Okay. Similarly, you can check for m is equal to 6. You can again find a prime which divide the left hand side but does not divide the right hand side. Okay.
एक प्राइम तुमको मिलेगा ही मिलेगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा लेकिन राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। सो बेसिकली हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो m is equals to 1, m is equals to 3 and m is equals to 2, ये तीन सोल्यूशन, राइट। सो द मेन मोटिव इज टू फाइंड अ प्राइम नंबर which divides RHS but does not divides LHS. Okay, so यही मेन आइडिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Now before move on to guarantee that m is equals to 1, m is equals to 3 and m is equals to 2, the only solution, the result I am gonna use to prove this is the Bertrand's postulate. Okay, so I am going to use this result, Bertrand's postulate, and this is the quite famous result in number theory. तुम इस रिजल्ट को यूज करके नंबर थ्योरी के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। So basically होता क्या है Bertrand's postulate? So the Bertrand's postulate is telling that for any n is greater than equals to 2, you can always find a prime that lies between n and 2n. That means अगर तुम ये इंटरवल लोगे n और 2n, तो इसमें एटलीस्ट एक प्राइम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यू कैन चेक दिस। लेट मी चेक फॉर यू। लेट्स टेक n इज इक्वल टू 2, देन द इंटरवल इज 2 and 4। सो 2 and 4 के बीच में एक प्राइम एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली, which is 3. Okay, let's take another example. Let's take n is equals to 3. तो 3 and 6 के बीच में क्या कोई प्राइम एग्जिस्ट करता है? Yes, the prime is 5. Okay, that lies between these. Okay, now you let n is equals to 4. 4 और 8 के बीच में प्राइम एग्जिस्ट करता है? Yes, 7. Okay, so 7 that belongs to 4 and 8, and like this you can go through. I am not showing you the proof and I am not showing you the related facts over here. You can always find these in various kind of books. You can check it after. Okay, so the result is necessary to remember that for n greater than equals to 2, you can always find a prime in between n and 2, right? तो मेन आइडिया तो यही है कि एक प्राइम हमको ढूंढना होगा जो कि RHS को डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन वो प्राइम LHS को नहीं डिवाइड करेगा, राइट? सो दैट मीन्स अब समझो LHS हमको क्या दिया गया था। इट इज 1 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल टाइम्स 5 फैक्टोरियल टाइम्स डॉट 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 ऑल द वे अप टू 2m minus of 1 फैक्टोरियल। ओके, मान लो कि P इसको डिवाइड नहीं कर रहा है एंड P RHS को डिवाइड कर रहा है, विच इज m टाइम्स m प्लस 1 over 2 फैक्टोरियल। ओके, नाउ अब समझो एक चीज को, अगर P इस चीज को डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? यहां से क्या हम कह सकते हैं कि P always be greater than 2m minus of 1? ओके, P 2m minus of 1 से बड़ा होगा, राइट? क्योंकि P इस चीज को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो P 2m minus 1 से तो बड़ा होगा ही होगा। अगर P 2m minus 1 से छोटा होता है तो P डेफिनेटली इस चीज को डिवाइड तो कर लेगा ना, राइट? करेगा ही करेगा। So that means P must be greater than 2m minus of 1. Alright. Now, using Bertrand's postulate, I can definitely tell that P 2m minus 1 से तो बड़ा रहेगा ही रहेगा और P 4m minus 2 से भी
छोटा होगा, राइट। जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, वही तो है डिफरेंस पोस्टुलेट, ओके। सो दैट मीन्स कैन आई राइट दैट P is at most 4m minus of 3, okay, P is at most 4m minus of 3, right। अब ध्यान से समझो, P हमारे पास at most 4m minus of 3 है एंड P इस चीज को डिवाइड कर रहा है, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 4m माइनस ऑफ 3 है वो लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स m प्लस 1/2 होगा, बोल सकता हूँ, राइट। क्योंकि देखो जो प्राइम इस चीज को डिवाइड कर रहा है वो तो इस इंटरवल के बीच में है, राइट। जो प्राइम इस RHS को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इस वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो प्राइम तो इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस 4m माइनस ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स m प्लस 1/2, ये होगा ही होगा, ओके। अगर ये नहीं होता तो फिर P क्या इस चीज को डिवाइड कर पाता? नहीं। अगर डिवाइड कर ही देता तो फिर क्या P इस इंटरवल में लाई करता? बिल्कुल नहीं। तो फिर P जो कि हमें रिक्वायर्ड है वो P हम ढूंढ रहे हैं, वही P जो RHS को डिवाइड कर रहा है वो P इस इंटरवल के बीच में है। तो फिर ये 4m minus of 3 has to be less than equals to m times m plus 1/2, right? So now from here the things goes very easy because this is just a standard manipulation, which is 8m minus of 6 is less than equals to m times m plus 1, okay. And from here you will get that m square minus of 7m plus 6 is greater than equals to 0, and from here you will get that m is greater than equals to 6. Now मतलब क्या है कि m is greater than equals to 6 का? इसका मतलब है कि जब भी m का वैल्यू 6 या 6 से बड़े है तो फिर जो ओरिजिनल रिलेशन है, ये वाली रिलेशन, ये होल्ड नहीं करेगा, ओके। दिस नेवर होल्ड्स ट्रू बिकॉज कि तुम एक प्राइम यहाँ पर पाओगे जो कि ये LHS को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन वो RHS को जरूर डिवाइड करेगा, राइट। जब जब m की वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा होगी तब तक ये ओरिजिनल रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, ओके। क्योंकि मैंने बता दिया कि एक प्राइम तुम ढूंढ पाओगे जो कि LHS को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन RHS को डिवाइड करेगा, राइट। दैट मीन्स द सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर m इज ग्रेटर देन m इज लेस देन 6। मतलब ये केस बहुत ही छोटा हो गया कि हमें बस ये पांचों केस चेक करना पड़ेगा कि m का वैल्यू ये 5 होने से या फिर 4 होने से या फिर 3 होने से या फिर 2 होने से या फिर 1 होने से गिवन रिलेशन जो कि सेटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करेगा। एंड वी ऑल हैव चेक दिस 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा। सो दैट मीन्स ओनली 3 सॉल्यूशंस आर 1, 2 एंड 3, ओके। तो समझ में आया? ये है एप्लीकेशन ऑफ बर्ट्रांस पोस्टुलेट। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकियों से चीज़ों को समझाया है, ओके। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। थैंक यू।